Culture is about coping with the changes of the world. Yes, today again I'm here in front of you to carry on with the third part of the chapter, the US hegemony. From the book The World Politics, Political Science, Class 12th, 2020-21. Till now we have discussed what the word hegemony mean. We have seen the disintegration of Soviet Union and we saw that how US became the ultimate power. हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे US dominant बन गया, कैसे वो एक super power बन गया. And by giving you the story, I also told you that how US can be called as a hard power, can be called as a structural power, and today we'll study that how the hegemony of US was a soft power also. Before we begin with the slide work, I asked you in my previous video a question, and that was, we often say that America is not a country, it is an idea. I was so happy to read all your comments and all your answers via WhatsApp and the comment box. And believe me, you are right. It is not only a country but an idea. क्योंकि अगर हम आइडिया के बारे में बात करें, so US was the first country to begin with the idea of an MBA degree. It was the first country to begin with the idea of internet, GPS and whatnot. So, when we talk about US hegemony, we talk about its power, its prestige, its respect and influence in the whole world. Before I begin with US hegemony as a soft power, मैं आपको कुछ brief में बता दूं that US hegemony as a hard power का मतलब military strength से, right? US hegemony as a structural power मतलब कि वो जो कुछ भी public goods produce करता है और उसका इकोनॉमिक शेयर कितना है, तो हम उसमें इंटरनेट बता सकते हैं, हम उसमें जीपीएस बता सकते हैं, हम उसमें एमबीए डिग्रीज का जो स्टार्ट है वो बता सकते हैं, उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना है ये बोल सकते हैं. तो आज हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर यूएस का पावर है, उसका कंट्रोल है. IT sector, the whole IT sector is controlled by US. Whether you talk about telecommunication or whether you talk about science and technology, it is US which has influenced the whole world. Today we'll start with US hegemony as a soft power. Soft means the word says that जो आपको मन में उतर जाए, और what you call as in हिंदी जो आपके दिमाग पे influence कर जाए, right? तो when we talk about US hegemony as a soft power, तो मतलब कि हम उससे कितना ज़्यादा influenced हैं, हम उससे कितना ज़्यादा persuaded हैं. तो बहुत ही important trait रहा है US का, और वो ये that US is able to control the people of the world and the economy of the world not by forcing them, not by dominating them, but by persuading them. परसुएट करने का मतलब होता है अपने आप उसको अपने वश में कर लेना, राइट? आज अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर हमें कौन सा अच्छा लगता है? वेस्ट का. वेदर इट इज बेवरेजेस, वेदर इट इज द क्यूजीन, वेदर इट इज द ईटिंग स्टाइल और वेदर इट इज द हेयर स्टाइल, हम हमेशा किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? वेस्ट से. हम हमेशा ये व्हाट यू कॉल अपग्रेड करते रहते हैं अपने आप को कि कौन सा फैशन चल रहा है, कौन कल्चर में कौन सा क्यूजीन नया आया है, या कौन सा हेडू बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, सो वी आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्ट. उसका कल्चर, उसकी लाइफस्टाइल हमेशा ही हमारे लिए प्रायर रहा है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बाकी और देशों के लिए भी, बाकी और कंट्रीज के लिए भी, राइट? So here we are going to begin with hegemony as a soft power of US. So हम अपनी first slide में देखेंगे that what all content it has, and then I'll explain you. The third sense of hegemony is about the capacity to manufacture consent. हमारा बहुत एक important trait रहता है बिजनेस में, और वो है लोगों की, कंज्यूमर्स की कंसेंट होना. वो अपने आप ही अगर कंसेंट दे दे गुड्स को खरीदने के लिए तो हमारा आधा सेल तो वहीं हो जाता है.
अगर एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट हम देखें, बहुत एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका बहुत इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजमेंट है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदने मार्केट चले जाते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें उस प्रोडक्ट की तो नेसेसिटी थी ही नहीं. इट इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग. यस, सो हियर वी आर टॉकिंग, और क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कंसेंट ऑफ अ कंज्यूमर इज सो इम्पॉर्टेंट टू सेल ऑफ योर गुड्स. तो यूएस क्या करता है, उसका जो कल्चरल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जो जिस तरह से हम उससे इंस्पायर होते हैं, वो इतने ज्यादा परसेंटेज में है कि पूरी दुनिया को ऐसा लगता है दैट यूएस इज प्रायर टू अस. इज दैट क्लियर? देन hegemony arises when the dominant class or the country can win the consent of the dominated classes by persuading मतलब उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको कंट्रोल या फोर्स करके नहीं, उनको इन्फ्लुएंस करके the dominated classes to view the world in a manner favorable to ascendancy ऑफ द डोमिनेंट क्लास. यानी कि जिसको वो डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट किसको कर रहा है? पूरे वर्ल्ड को. तो उसको इस तरह से डोमिनेट करना कि उसको ये ना लगे कि वो फोर्सफुली डोमिनेट हो रहे हैं, बट वो परसुएट होकर डोमिनेट होते चले जा रहे हैं. दे आर सो इन्फ्लुएंस्ड. हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं यूएस से, वेस्ट से, कि हमें अपने आप लगता है कि हमें वही फॉलो करना चाहिए जो यूएस फॉलो कर रहा है. Is that clear? So when we talk about the soft power, we talk about its culture, its lifestyle, its drinks, its eats, the cuisines that they use, the dresses they wear, the hairdo they do. Is that okay? Moving on to our next slide. The behavior of the weaker countries is influenced in ways that favor the interest of the most powerful countries, in particular to desire to remain free. One more thing, I would like you to go back to the story of Andrew. When we were talking about the story of those three people, then I was talking about the last person, when we were like relating to the last person, if you remember that boy who wanted to wear blue jeans in church. ठीक है, तो उसका अपनी मम्मी से क्या आर्ग्यूमेंट होता है? वो कहते हैं कि नहीं, लेट मी वेयर द ब्लू जीन्स. व्हाई? बिकॉज इट गिव्स मी फ्रीडम. जीन्स पहनकर मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम फ्री, आई एम अ फ्री सोल, आई एम अ फ्री स्पिरिट. और बहुत से यंगस्टर्स, अगर हम आज देखें, लाइक यू ऑल आर यंगस्टर्स, तो हमें वही चीज पहनना अच्छा लगता है जो हमें एक फ्रीडम का रियलाइजेशन कराए. ओके, कई बार हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा पहनो, इस फंक्शन में फॉर्मल पहनो, यहाँ जाना है तो ऐसे कपड़े पहनो, बट वी कीप आर्ग्यूइंग विद देम एंड वी से कि नहीं, लेट मी वेयर द वे आई वांट टू. व्हाई? बिकॉज इट गिव्स मी फ्रीडम, इट गिव्स मी अ स्पिरिट दैट आई एम फ्री. ओके, तो ये जो फ्रीडम का स्पिरिट है, कल्चर के साथ मिंगल होने का स्पिरिट है, ये कहाँ से आया? इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. We want to copy what is going on in the West, and when we do that, we feel that we are looking cool. Okay, तभी जब मैंने वो स्टोरी आपको रिलेट करा तो उसमें एक टर्म आया था that boy while wearing those blue denims would feel cool in the church. Okay, the predominance of US in the world today is based not only on the military power and economic power but also on its cultural presence. तो US hegemony as a hard power, US hegemony as a structural power is very important. But at the same time, we need to remember that today, that is in the present scenario, it is US hegemonic soft power which is prevailing. कहीं ना कहीं हम वही कर रहे हैं जो कि यूएस कर रहा है. हम वही करना चाहते हैं जो यूएस कर रहा है. हम अपने घर की सेटिंग्स भी वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे यूएस में हमें दिखाई देती है. तो ये छोटी छोटी चीजों से हमें ये पता चलता है दैट यूएस हैज कैप्चर्ड आवर माइंड्स. हम फोर्सफुली ये सब नहीं कर रहे, वो हमसे फोर्सफुली ये सब नहीं करवा रहा, बट हमें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमें इस तरह से परसुएट कर रहा है कि हमारे दिमाग में एक ये चीज बैठ गई है कि हमें कैसे बनना है, हमें तो वही लाइफस्टाइल कॉपी करना है जो कि यूएस में हो रहा है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूएस हेजेमोनी एज अ सॉफ्ट पावर. बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमें वो इन्फ्लुएंस करता जा रहा है और हम अपने कल्चर को बदलते जा रहे हैं. और हम क्या कॉपी कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू कॉपी द कल्चर ऑफ द वेस्ट. एंड इफ यू रिमेंबर, आई स्टार्टेड दिस वीडियो विद अ कोट. Culture is all about coping with the changes of the world.
क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इसलिए हम भी चाहते हैं हम अपने कल्चर को बदलकर कैसा कल्चर अपना ले, जैसे कि कल्चर वेस्ट में चल रहा है. एंड व्हाई वेस्ट, why not any other country? Because west is the superpower. US is a hegemon. US hegemony is prevailing in the entire world. Let us move on to our next slide. It says America is the most seductive and in this sense the most powerful. The word seductive means जो आपको बहुत अच्छे से influence कर ले. पॉलिटिकल साइंस में seduce करने का मतलब आप इंस्पायर हो जाओ. यू नो, whenever you read a very good book, whenever you read a very interesting book, तो आप चाहते हो कि हम जल्दी जल्दी उस बुक के एंड तक आए, हमें पता चले कि स्टोरी क्या है, राइट? एक बहुत ही अच्छी मूवी अगर लॉन्च होती है तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं उसका स्टोरी लाइन क्या है, फिर हम देखते हैं कि उसका एक्टर और एक्ट्रेसेस क्या है. तो अगर हमें वो पसंद आते हैं तो दैट इटसेल्फ इज इनफ for the audience to watch the movie. अभी एक न्यू मूवी रिलीज हुई ऑफ लेट सुशांत सिंह, and I'm very hopeful that we all are very enthusiastic to watch that movie. Not because maybe only because of his acting, but because we were so attached to that actor, to that young face, and that is why we want to see his last movie. We want to watch his last movie. तो उस मूवी को देखने जाने के लिए थिएटर तक सिर्फ यही काफी है कि he was a very good actor and now he is no more, and that is why we want to tribute him by watching that movie. तो सिर्फ यही रीजन इस पूरी मूवी के लिए seductive है. Seductive, that is something which can influence you. The culture of the West is so seductive, right? And that is why in this sense the most powerful culture on the earth, सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, but around the world this culture is so popular. This attribute is called soft power, the ability to persuade rather than to force. Force ना करके दूसरे को persuade करना, उसे influence करना, उसे inspire करना, and that is what is called as the big inspiration, right? Then you couldn't have forgotten Andre. As I was telling you students, अभी कुछ देर पहले ही मैंने एंड्री का रेफरेंस आपको दिया कि एंड्री अपनी कूल जीन्स पहन के चर्च में जाना चाहता था, बट उसके पेरेंट्स उसको बार बार मना करते थे दैट they won't look good, but he would argue with his parents. I think you all will be able to relate this story with your story and the argument that you would do with your parents. Okay, आज हम हमेशा वही कपड़े पहनना चाहते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, right? So a pair of blue jeans. When his parents were youngsters in Soviet Union, blue jeans were the ultimate symbol of liberation. Liberation मतलब freedom. For their generation, young men and women often spent over a year's salary to buy the blue jeans from foreign tourists on the black market. One more thing students, that वेस्ट के कल्चर को अपनाने के लिए, वेस्ट के कल्चर को इंडिया में लाने के लिए या किसी भी कंट्री में लाने के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं. You know, I remember that if I'm not wrong, you all are youngsters and you'll be able to relate it well. हम कुछ ऐसा करने के लिए जो वेस्ट में हो रहा है, कुछ भी करने को तैयार है, अपना पूरा पॉकेट मनी स्पेंड करने को तैयार है. क्या खरीदने के लिए? एक ऐसा पेयर ऑफ जीन्स जो कि मे बी हमारे पेरेंट्स को ना पसंद हो बट हमें बहुत पसंद है. ऑलराइट, हम हेयर डू वही करवाते हैं, हम हेयर कट वैसा ही करवाते हैं, हम टैटूज बनवाते हैं. ओके, व्हाई? नॉट बिकॉज आई लाइक देम और बिकॉज माई पेरेंट्स लाइक देम, बट बिकॉज इट इज इन. Okay, we often say this is in, mom. It is so famous. It is so popular these days. सब लोग ऐसा ही करवा रहे हैं. Okay, so culture is about coping with the changes of the world. और हम किसे कॉपी करते हैं? We are trying to copy West. Is that clear? Moving on to our next slide. Somehow, for an entire Soviet generation, blue jeans came to represent aspirations of good life that were not available in their own country. If you remember, students, when I was talking about the disintegration of Soviet Union, अगर आप मेरी previous video में देखेंगे, so when I was talking about the disintegration of Soviet Union, I told one reason that the people of Soviet Union were able to understand that they were lagging behind the West. वो West को copy नहीं कर पा रहे हैं.
उनका क्वालिटी, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट दे वांटेड टू बी लाइक देम। तो जब हम एंड्री के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो उसके पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि उनके टाइम में वो एक पेयर ऑफ ब्लू जीन्स खरीदना किसका सिंबल था? फ्रीडम का सिंबल था, लिबरेशन का सिंबल था, क्योंकि वो वही लाइफ चाहते थे जो लाइफ अमेरिका में है, राइट? It was in the area of soft power that US was the ultimate triumph. It has, you know, it has been so victorious in everything, but the ultimate victory of US is that it has acquired our hearts. हमारा दिल ही जीत लिया उसने, okay? And that is why we often say that we want to be like what is happening in the West. We want to have a life that is there in the West. आज हम शायद अगर मैं छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान लेकर आऊं तो हम अपने लाइफस्टाइल में क्या करते हैं, हम रोटी सब्जी ना खाकर या फिर एक चपाती वेजी के साथ ना खाकर टोस्ट खाना पसंद करते हैं, ग्रिल सैंडविचेस खाना पसंद करते हैं, हम अ ग्लास ऑफ मिल्क या फिर अ कप ऑफ कॉफ़ी या टी ना लेकर कोई एक मॉकटेल लेना पसंद करते हैं, और मे बी अ ग्लास ऑफ जूस लेना पसंद करते हैं। ये इससे नहीं because you know it is more healthy or because I want to do it, just because you know it is the culture, and that is why we want to cope with the culture of the world. I hope you are able to understand it. अब इस स्लाइड के बाद हम पढ़ेंगे that how a new economic world order was generated, beginning with the new world order. ठीक है, तो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जब बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस हेजेमोनी। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 1945 से लेकर 1991 तक द कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है, और 1991 के बाद यूएस हेजेमोनी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। 1991 से अभी तक टिल डेट इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस हेजेमोनी, ठीक है? द अल्टीमेट पावर इन द वर्ल्ड, वन सुपर पावर, एंड दैट इज यूएस। तो ये जो यूएस हेजेमोनी है ये एक सडन चेंज नहीं था। सडनली यूएस ने डिक्लेयर नहीं कर दिया था दैट ही इज अ हेजेमोन, दैट ही इज अ डोमिनेंट पावर। बहुत से ऐसे सीरीज ऑफ फाइट्स हुई, वॉर्स हुए, इन्वेजन्स हुए, जिससे कि ये लोगों को पता चलने लग पड़ा दैट यूएस इज द डोमिनेंट पावर। तो now we will study one after the other the invasions in which US took a very powerful stand. बहुत अच्छा डिसीजन उसने लिया, बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बना, और धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग पड़ा, ग्रेजुअली लोगों को पता चलने लग पड़ा दैट यूएस इज अ हेजेमोन, यूएस इज अ डोमिनेंट पावर, वो एक सुपर हाउस ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी है। Is that clear? Okay, so the sudden collapse of Soviet Union took everyone by surprise. सब लोग बहुत सरप्राइज थे कि कैसे एक बाइपोलर वर्ल्ड से एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है। I'm not using the word unipolar again and again because pole would mean something related to physics, and political science people remain in the political arena, and that is why I'm not using a physical term here. I'm not using a term from physics. I'm using a political science term, and that is a hegemon. Okay, while one of the two superpowers ceased to exist, the other remained with all its powers intact. तो सोवियत यूनियन तो कोलैप्स हो चुका था, उसकी सारी पावर्स डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, जो उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है वो बैन हो चुका था। तो अब एक ही पावर बच गया था, एंड दैट वाज यूएस हेजेमोन। और ये पावर उसको सडनली नहीं मिली, ओके? वन आफ्टर द अदर ऐसे इन्वेजन्स हुए जिसमें लोगों को पता चला दैट यूएस इज अ पावरफुल नेशन। Thus US hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared. तो आपको क्या याद रखना है, US hegemony कब स्टार्ट हुई? It started from the year 1991 till date. Let's move on to our next slide. The US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later the world was in fact living in a period of hegemony. Let us therefore look at the process by which US hegemony got established more closely. I will tell you once again, I'll recap that जो US का hegemony है, जो उसका power है, वो एकदम से उसके पास नहीं आया. It was not all of a sudden.
ठीक है। 1991 में ऐसा नहीं है कि हमने कोई क्राउन लाके यूएस को पहना दिया और बोला कि भाई अब आप हेजेमॉन हो, अब आप डोमिनेंट पावर हो, ऐसा नहीं होता। ओके, ऐसा सिर्फ बॉसेस के साथ होता है, लीडर्स के साथ नहीं होता। एंड यूएस इज अ लीडर, राइट। और लीडर्स कैसे बनते हैं? लीडर्स बनते हैं स्टेप बाय स्टेप, अपने डिसीजंस से, अपने प्रैक्टिसेस से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से और अपने काम से, राइट। तो लोगों को ये पता चलने लग पड़ा दैट यूएस इज पावरफुल। और वो कैसे पता चला? वी विल सी। इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, ठीक है, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड एनेक्सिंग इट। एनेक्स करना मतलब जबरदस्ती उस हिस्से को अपना लेना। अब कोई एक लैंड है जिसमें आप उसको कॉन्कर भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एनेक्स वर्ड का मतलब है उसको जबरदस्ती अपना लेना अपना, ठीक है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन। इराक को बहुत समझाया गया कि आप क्विट कर लो, आप लड़ाई मत करो, कोई वॉर को मतलब मत होने दो। बट इन स्पाइट ऑफ लाइक टॉकिंग टू देम, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टेबल टॉक्स विद देम, इराक वाज नॉट इन अ मूड टू लाइक क्विट Kuwait, and that is why United Nations mandated the liberation of Kuwait by force। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था यूनाइटेड नेशंस का। पहली बार पूरी दुनिया ने देखा कि जब इराक वाज नॉट इन अ मूड टू लिबरेट कुवैत, तो यूएस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और वो था फोर्सिबली कुवैत को फ्रीडम दिलाना, ठीक है। और ये डिसीजन उसने बहुत सालों के बाद लिया था। बहुत सालों के बाद इसलिए लिया था बिकॉज कोल्ड वॉर एरा में तो कोई डिसीजन हुआ ही नहीं। कोल्ड वॉर एरा में तो बस बात नहीं करते थे एक दूसरे से। कोल्ड वॉर मतलब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हमें एक दूसरे की पॉलिसीज नहीं पसंद है, हम एक दूसरे की तरह सोचते नहीं है, राइट। एंड दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, दैट इज वाई इस इंपॉर्टेंट डिसीजन के बाद ही लोगों को पता चला दैट यूएस इज अ हेजेमॉन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। For the UN, this was a dramatic decision after years of deadlock during the Cold War. The US President George W.H. Bush hailed the emergence of the New World Order। और उसने ये साबित कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया कि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा where US will be a hegemon. A massive coalition force of around so many troops, you can imagine, from 34 countries fought against Iraq and defeated it in what came to be known as the first Gulf War। तो हम फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Herein I'll stop the video, and before I end the video I would like to ask you something in this video, and that is that after watching my video, do tell me in the comment box that what are those things which influence you from the West। वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं वेस्ट से? उनका टैटू स्टाइल, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी ईटिंग हैबिट्स या उनके क्विजीन्स या वे ऑफ लिविंग। तो वो जो कुछ भी है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है वेस्ट से, डू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।